friends, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new section that is of the chapter measures of central tendency, and the concept again is what? Based on mean. But now this time we are starting with a new concept that is based on combined mean. So we are taking one example based on that. First, that is question number 13. So this is question which is based on what? Combined mean. Now this is the first time we are introducing what? This topic, that is combined mean. So यहाँ पे we read the first question, that is the weekly wages for 100 workers in a factory are 600. The average wage for male workers out of them is rupees 650, and find the average for the remaining female workers. I'll read the question once again. It is average weekly wages for 100 workers in a factory are 600. The average wages for male workers out of them is 650. Find the average for the remaining female workers. So, यहाँ पे I'll say the value which is given over here is, that is average weekly wages for 100 workers. मतलब total number of workers जो है, so I will write total number of workers is equal to 100. ये दिया गया है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स. नाउ कैन आई से टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में वी हैव फीमेल वर्कर्स एज वेल एज व्हाट? मेल वर्कर्स, जिसमें से उन्होंने बोला है कि मेल वर्कर्स जो है that are 50. So I consider my male workers as what? N1. So I write it as what? N1 is equal to क्या आएगा? 50. So N1 is representing what? Number of male workers, or I'll write it as what? Number of male workers. And I'll denote that by what? N1. I'll write this way, that is equal to what? 50. Same way, I'll say remaining will be female workers. So number of female workers, that is N2. So I'll say that is equal to, that is total 100 workers were there minus my male workers. That will give me what? 50 is the answer. So number of female workers is also what? 50. So I got a value of what? N1 and N2. Now they have given me the value of what? Combined mean. So I'll say combined mean, I'll represent that as what? X bar for mean and C for combined. And the value for that is 600. And बोला है average wages for male workers out of them is rupees 650. तो यहाँ पे I'll say X1 bar is equal to 650 दिया गया है. So I use the formula over here, that is XC bar, that is combined mean का formula. What is that value equal to? I say it is N1 X1 bar plus N2 X2 bar upon N1 plus क्या आएगा? N2. Now we'll check कि कौन से values है. तो हम देखेंगे यहाँ पे XC bar का value, we consider that as what? 600. This is equal to N1 का value. What is N1? तो I'll say it is what? 50 into क्या आएगा? X1 bar. X1 bar का value कितना है? 650 है. Plus N2 का value हमें मिला because हमारे पास 100 that is total number of workers थे, उसमें से N1 number of male workers है, तो 100 minus 50 किया तो 50 आएगा. That is my number of what? Female workers. And X2 bar, यही value हमें ढूंढना है because उन लोगों ने क्या बोला है? Find the average for the remaining female workers. तो वो हो जाएगा X2 bar का value ढूंढना है. Upon ये N1 plus N2 मतलब total number of workers हो जाएगा. Total number of workers कितने हैं? तो मैं बोलूँगा 100. तो ये हो जाएगा 100. तो यहाँ पे it is 600 into क्या हो जाएगा? 100 is equal to 550 into 650. इसका तो value निकालना होगा plus 50x2 bar. So यहाँ पे 50 into ये, तो यहाँ पे ये दो 0 आ जाएंगे and 5 5 ये हो जाएगा 25 2 कैरी और ये हो जाएगा 32. तो ये हो जाएगा 32500 एंड इसका टोटल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 60000 इज इक्वल टू 32,000 क्या आएगा? 500 प्लस 50x2 बार. अब नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखते हैं तो इट इज 60,000 में से 32,500 माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50x2 बार. तो ये हो जाएगा 27,500
इज इक्वल टू 50x2 बार। तो ये हो जाएगा 27500 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा x2 बार। सो ये हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 5 5 हो जाएगा 2 कैरी, तो ये 5 5 एंड ये 0। सो x2 बार का वैल्यू हो जाएगा इज व्हाट 550। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर दैट इज एवरेज रिमेनिंग फीमेल वर्कर्स का वैल्यू इज, सो एवरेज wages for female workers is ₹550। So ये था क्वेश्चन which was based on what combined mean, एंड जहां पे हमने ढूंढना क्या था कि एक टोटल वैल्यूज जो दिए थे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ये 100 दिया था, नंबर ऑफ वर्कर्स 50 दिया था। सो वहां से हमने नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ढूंढे, दैट इज टोटल में से वो माइनस किया, तो हमें वैल्यू मिला इज व्हाट 50, दैट इज 100 माइनस 50 किया, क्योंकि टोटल पता था और मेल वर्कर्स पता था, तो बचे हुए जो भी रह गए वो क्या आएगा फीमेल वर्कर्स। एंड कंबाइंड मीन का वैल्यू दिया था, मतलब पूरे ग्रुप का 100 के 100 वर्कर्स का वैल्यू दिया था एज व्हाट 600 एंड खाली मेल वर्कर्स का वैल्यू दिया था एज व्हाट 650। तो हमें ढूंढना था कि फीमेल वर्कर्स का वैल्यू कितना है, दैट इज एवरेज पार्ट ढूंढना था। तो हमने वो फॉर्मूला यूज किया था, xc बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। नाउ सिंस ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, तो इसमें जो जो वैल्यूज पता है वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ व्हाट x2 बार। यहाँ पे पूरा सिंप्लीफिकेशन किया एंड x2 बार का वैल्यू मिला, एंड ये x2 बार मतलब मेरा है वैल्यू फॉर व्हाट एवरेज फीमेल वर्कर्स। सो लास्ट में वही पूछा था एवरेज वेजेस फॉर फीमेल वर्कर्स इज हाउ मच, तो वो था इस रुपीस क्या आएगा 550। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। Now we start with the next question, that is question number बोलेंगे अभी 14 sum। So now again this is question based on what combined mean related ही है, but थोड़ा सा ये question change होगा। यहाँ पे condition दिया गया है, the mean marks for 100 boys in a class are 50, the mean marks of entire class of 150 students are 75, find mean marks of remaining group of what girls। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ता हूं, द मीन मार्क्स ऑफ 100 बॉयज इन अ क्लास आर 50 बोला, द मीन मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स आर 75, फाइंड मीन मार्क्स ऑफ रिमेनिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सो यहाँ पे अगेन आई विल से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब मैं बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 150। तो ये वैल्यू दिया गया है। आगे उन्होंने बोला है कि मीन मार्क्स फॉर दिस एंटायर ग्रुप मतलब एक्स सी बार कंबाइंड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे। सो कंबाइंड वैल्यू का एवरेज दिया गया एज 75, तो ये लिखा 75। अच्छा आगे और बोला है द मीन मार्क्स ऑफ 100 बॉयज, सो आई विल से नंबर ऑफ बॉयज that is n1 कंसिडर करके that is equal to 100 आ जाएगा। so I will say number of girls, ये जो रहेगा इसको डिनोट करेंगे बाय n2 एंड ये वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा टोटल, दैट इज टोटल 150 है, उसमें से 100 जाएगा तो बचा हुआ 50। तो n1 मिल गया, n2 मिल गया, यहाँ पे n1 प्लस n2 का टोटल आ गया है, xc बार आ गया है। अब उन लोग ने यहाँ पे एक और वैल्यू दिया है दैट इज x1 बार का वैल्यू, एंड ये x1 बार का वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे x1 बार इज इक्वल टू 50 दिया है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब x2 बार का वैल्यू चाहिए। सो अगेन आई विल से इट इज व्हाट xc बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब जो जो वैल्यूज है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे xc बार का वैल्यू ऑलरेडी है विच इज व्हाट 75, यहाँ पे n1 का वैल्यू है विच इज व्हाट 100, यहाँ पे x1 बार का वैल्यू है विच इज व्हाट 50 प्लस n2 का वैल्यू हमें मिल गया है यहाँ पे विच इज 50, x2 बार ढूंढना है अपॉन ये हो जाएगा n1 प्लस n2 जिसका वैल्यू है 150। सो ये हो जाएगा 75 इंटू 150 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5000 प्लस 50 टाइम्स ऑफ क्या आएगा x2 बार। सो ये 75 इंटू 150 करना है, सो 75 मल्टीप्लाई बाई 150 किया तो इसका आंसर हो जाएगा 11250। यहाँ पे ये ऑलरेडी 5000 है
प्लस 50x2 बार। सो यहाँ पे 11250 में से 5000 जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50x2 बार। सो यहाँ पे 11250 माइनस क्या करना है 5000 करना है, सो दिस वैल्यू इज 6250 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 50x2 बार। सो अब यहाँ पे 6250 अपॉन क्या आएगा 50, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा x2 बार। सो अब ये नंबर को डिवाइड बाय क्या करेंगे 50, सो ये नंबर को डिवाइड बाय 50 किया तो वी गेट द आंसर एज व्हाट 125। तो ये हो गया मेरा x2 बार का वैल्यू। एंड लास्ट में उन्होंने पूछा था कि फाइंड मीन मार्क्स ऑफ रिमेनिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सो यहाँ पे लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे मीन मार्क्स ऑफ रिमेनिंग ग्रुप of girls is 125। सो ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने ये दो क्वेश्चन देखे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच वर बेस्ड ऑन व्हाट कंबाइंड मीन। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने ये कंबाइंड मीन के सम्स देखे, तो ये दो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलर लाइंस थे। सो अब अगर हम देखते हैं तो हमने ये पूरा सम खत्म किया है, सो वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस। Now we start with the next question, that is question number 15. So यहाँ पे I'll read the 15th question. The 15th question is the mean weight of a group of 70 workers is 70 kgs. The second group consists of 80 workers with average weight 60 kgs, and there are 50 workers in the third group with average weight of 65 kgs. Find average weight of combined group of 200 वर्कर्स। सो यहाँ पे अगर देखते हैं हमने लास्ट से जो क्वेश्चन नंबर 13 था एंड क्वेश्चन नंबर 14 था, वो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में हमने देखा था कि वहां पे दो ही ग्रुप होते थे। अब ये क्वेश्चन में टोटल 3 ग्रुप है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप दिया है उसके लिए उन्होंने बताया द मीन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 70 वर्कर्स इज 70 kg। मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट ग्रुप के वैल्यू को जो मीन है उसको डिनोट करूंगा बाय x1 बार एंड जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको डिनोट करूंगा बाय व्हाट n1। अब x1 बार का वैल्यू उन्होंने दिया है 70 एंड n1 का वैल्यू भी क्या दिया है 70, तो ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है x1 बार इज आल्सो 70 एंड n1 का वैल्यू इज आल्सो व्हाट 70। सो अब यहाँ पे आगे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं, तो सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 80 वर्कर्स बोला है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो n2 का वैल्यू दिया है व्हाट 80 एंड साथ में उसका एवरेज वेट दिया है एज 60। तो एवरेज बोला मतलब x2 है क्योंकि सेकेंड ग्रुप है तो x2 से डिनोट किया एंड एवरेज बोला इसलिए बाहर आएगा, तो x2 बार का वैल्यू है 60। वैसे ही यहाँ पे थर्ड ग्रुप के बारे में भी बोला है देयर आर 50 वर्कर्स बोला है। सिंस देयर आर 50 वर्कर्स तो हम यहाँ पे n3 का वैल्यू ले गए एज व्हाट 50। तो अगर n3 का वैल्यू अगर 50 लिया तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट x3 बार, क्योंकि मीन वेट उसके बारे में भी दिया है एंड वो मीन वेट का वैल्यू दिया है व्हाट 65। सो अब हमें पूछा है कि टोटल ये पूरे ग्रुप का एवरेज कंबाइंड वेट क्या होगा, तो कंबाइंड वेट पूछा है मतलब हमें कंबाइंड मीन ढूंढना है, मतलब xc बार का वैल्यू ढूंढना है एंड xc बार का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा एज व्हाट दिस इज xc बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार
ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, बट यहाँ पे सिंस 3 ग्रुप है तो तीसरे ग्रुप का वैल्यू भी ऐड होगा, दैट इज n3 बार, n3 एंड व्हाट x3 बार अपॉन यहाँ पे आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस व्हाट n3। तो अब इसमें से मेरे पास वैल्यू ऑफ n1 है विच इज व्हाट 70, x1 बार का वैल्यू भी क्या है 70 प्लस n2 का वैल्यू है एज 80 एंड x2 बार का वैल्यू है एज 60 प्लस n3 बार का वैल्यू है एज व्हाट, सॉरी n3 का वैल्यू है एज 50 एंड x3 बार जो है उसका वैल्यू एज व्हाट 65 अपॉन, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 70 प्लस 80 प्लस 50, तो टोटल n1 प्लस n2 प्लस n3 200 है, क्योंकि उन लोगों ने दिया है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ 200 वर्कर्स, तो टोटल ग्रुप में 200 वर्कर्स है। सो अब इसका टोटल करना होगा एंड ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई व्हाट 70 इनटू क्या आएगा 70, तो ये हो जाएगा 4900 प्लस अब हमें करना है यहाँ पे 80 इंटू व्हाट 60, तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 4800 प्लस अब ये हो जाएगा 65 इंटू 50, तो इसका वैल्यू आता है 3250 होल डिवाइडेड बाय इसका टोटल हो जाएगा एज व्हाट 200, दैट इज 70 प्लस 80 प्लस 50, तो ये टोटल हो जाएगा एज व्हाट 200, तो ये 200 हो गया। अब हमें यहाँ पे टोटल चाहिए, तो ये चाहिए एज 4900 प्लस 4800 प्लस 3250, सो इसका टोटल हो जाएगा एज व्हाट 12950 डिवाइड बाय 200, तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 200, तो हमें एवरेज मिलेगा एंड ये एवरेज आ रहा है व्हाट 64.75, सो ये हो जाएगा मेरा XC बार का वैल्यू। सो लास्ट में मुझे एक स्टेटमेंट लिखना होगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे दिया है एवरेज वेट ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ 200 वर्कर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 200 workers is 64.75 एंड सिंस ये वेट है तो ये क्या दिया है एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि केजी, तो ये हो जाएगा 64.75 केजीज, तो ये हो गया मेरा एवरेज वेट फॉर द कंबाइंड ऑफ व्हाट 3 ग्रुप्स। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था तो वो खाली 2 ही ग्रुप के लिए था, ये क्वेश्चन में हमने देखा इट वाज फॉर 3 ग्रुप्स, तो दिस वाज वन क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट 3 ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज में। अब इसके बाद हम देखते हैं वो एक और क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, सो वी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड यहाँ पे दिया गया है द वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 53, तो वेट दिया है ऑफ 50 students in a class was 53. 2 new students with marks 51 and 57 were admitted to this class. So इसका मतलब है यहाँ पे mean weight, जब मैं बोलता हूं mean weight of 50 students in a class was 53, mean weight इसका मतलब एवरेज वेट दे दिया, इसका मतलब ये x बार का वैल्यू दिया हुआ है एंड ये x बार का जो वैल्यू दिया गया है वो है 53 एंड जो नंबर ऑफ पर्संस दिए गए दैट इज कितने लोग हैं दैट इज स्टूडेंट्स, तो ये दिया गया है व्हाट 50, ये वैल्यू दिया गया है। आगे बोला है 2 न्यू स्टूडेंट्स विथ वेट, 2 न्यू स्टूडेंट्स मतलब मैं ऐसा बोलूंगा देयर आर 2 मोर स्टूडेंट्स, सो 2 students were added बोला है and since 2 students were added their weights will be added, so हम ऐसा बोलेंगे 2 students were added and their weights are 51 and 57। सो अब अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारे पास x बार का वैल्यू है, ये x बार जो है उसका वैल्यू 53 है, मतलब जब 50 लोग थे एक ग्रुप में तब x बार का वैल्यू क्या दिया है, तो x बार का वैल्यू दिया है 53, मतलब जब 50 लोग थे एक ग्रुप में तब उन लोग का एवरेज वेट जो दिया है वो 53 था।
अब उन लोग क्या बोल रहे कि 2 स्टूडेंट्स वर एडेड, मतलब अभी यहां पे ऐसा हो गया है कि 50 स्टूडेंट्स थे, 2 स्टूडेंट्स को और ऐड किया, मतलब अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 52, क्योंकि 50 थे और 2 स्टूडेंट्स को ऐड किया। सो यहां पे आई विल से ड्यू वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 50 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 52। तो हम ये लिखेंगे 52 बिकॉज ये न्यू वैल्यू ऑफ n क्यों ढूंढा, क्योंकि उन लोगों ने बोला 2 स्टूडेंट्स वर एडेड, तो ये वैल्यू आया। सो न्यू n का वैल्यू मिल गया। अब हमें जो ढूंढना है वो उन लोगों ने बोला है कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ व्हाट ऑल 52 स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मुझे पहले, अभी ये देखो 2 नए स्टूडेंट्स का वेट मालूम है, बट मुझे 50 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना है वो जानना पड़ेगा। एंड उसके लिए उन लोगों ने हमें कंडीशन दिया है व्हाट x बार अपॉन x बार इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 50। तो x बार का वैल्यू होता है इट इज समेशन x अपॉन क्या आएगा n, एंड x बार का वैल्यू दिया है एज 53 इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, n मतलब क्या आएगा 50, तो ये हो जाएगा 53 इंटू क्या आएगा 50 विच इज इक्वल टू क्या आएगा समेशन x। एंड अगर हम देखते हैं तो 53 इंटू 50 मतलब समेशन x मतलब टोटल जो 50 लोग थे उन लोग का वेट कितना होगा वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 53 इंटू 50 जो टोटल आ जाएगा 2650। तो ये हो गया समेशन ऑफ x, मतलब टोटल 50 लोग का जो वेट था उसका टोटल कैलकुलेट किया इट इज 2650। एंड अब जो 2 नए स्टूडेंट्स ऐड किए तो उनके वेट्स भी ऐड हो गए। सो अब मुझे मिलेगा न्यू वैल्यू ऑफ समेशन x। तो न्यू वैल्यू ऑफ समेशन x विल बी व्हाट समेशन x प्लस जो नए 2 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट ऐड करके दैट इज 51 प्लस व्हाट 57। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2650 प्लस 51 प्लस 57। तो ये मुझे मिल जाएगा न्यू समेशन x, मतलब नए लोग जो थे वो लोग को भी वेट्स को ऐड किया एंड जो पुराने लोग थे वो लोग के वेट्स को भी ऐड किया, तो टोटल पूरे के पूरे 52 लोग का वेट ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2650 प्लस 51 प्लस 57। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2758। तो ये हो गया मेरा न्यू वैल्यू ऑफ व्हाट न्यू समेशन x। अब मुझे ढूंढना है न्यू x बार का वैल्यू, तो ये हो जाएगा न्यू समेशन ऑफ x अपॉन न्यू वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा n। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2758 डिवाइड बाय 52 हो जाएगा। सो यहां पे ये 2758 है, इसको अगर डिवाइड बाय 52 किया तो वी गेट द आंसर एज व्हाट 53.038। सो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 53.04, इसलिए मैंने राउंड ऑफ किया, इसलिए मैंने यहां पे लिखा अप्रोक्सीमेटली। एंड सिंस ये वेट है तो मैं यहां पे लिखूंगा एज व्हाट kgs। सो यहां पे फाइनल स्टेटमेंट आएगा therefore the average weight of all 52 students, therefore the average weight of all 52 students is 53.04 kgs। सो अब हमने देखा यहां पे वापस हमने 2 क्वेश्चन देखे। सो अब ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए तो ये 2 क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे। तो वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो अब 17 सब में क्या दिया है तो हम रीड करेंगे। सो क्वेश्चन रीड किया तो ऐसा दिया है द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर 75। सो एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर 75। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 69 एंड 85 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे क्या दिया है एवरेज मार्क्स दिया गया है ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। जब बोला गया है बॉयज एंड गर्ल्स आर 69 एंड व्हाट 85, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ये x1 बार का वैल्यू दिया और x2 बार का वैल्यू दिया है। फिर दिया गया है इफ देयर आर 100 बॉयज इन द क्लास,
फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गिवन कंडीशन में क्या क्या डेटा दिया गया है वो हम लिखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर 75। सो ये 75 दिया गया है, मतलब ये ऑफ अ क्लास बोला है, मतलब ये कंबाइंड वैल्यू दिया है। सो कंबाइंड वैल्यू है 75। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स के एवरेज मार्क्स मतलब x1 बार एंड व्हाट x2 बार। सो x1 बार में दिया गया है 69 एंड x2 बार में दिया गया है 85। सो ये x1 एंड x2 बार का वैल्यू। इफ देयर आर 100 बॉयज बोला है, सिंस 100 बॉयज है इसका मतलब n1 का वैल्यू है 100 एंड उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। सो नंबर ऑफ गर्ल्स मालूम नहीं है तो वी से दैट वैल्यू इज व्हाट n2। तो ये n2 का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या सेट ऑफ वैल्यूज है, तो जो सेट ऑफ वैल्यूज है उस हिसाब से यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि xc बार का वैल्यू दिया है। तो xc बार इज इक्वल टू हम बोलेंगे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस क्या आएगा n2। अब इसमें से जो जो वैल्यूज हमारे पास है हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो xc बार का वैल्यू है विच इज 75 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू है 100, फिर ब्रैकेट में लिखूंगा x1 बार का वैल्यू जो है 69 प्लस यहाँ पे n2 का वैल्यू नहीं है, यही तो वैल्यू हमें ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है n2, तो उसी का वैल्यू ढूंढना है। एंड x2 बार मतलब क्या आएगा यहाँ पे 85 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे n1 प्लस n2। तो n1 का वैल्यू क्या है 100 है प्लस n2 पता नहीं है। सो अब ये अपॉन में है, ये साइड पे जाएगा, व्हेन वी शिफ्ट दिस टर्म ओवर हियर तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 75, फिर आ जाएगा ब्रैकेट में 100 प्लस n2 which is equal to, अब 69 into 100 बोलेंगे तो 69 into 100 हो जाएगा 6900 प्लस ये हो जाएगा 85 into n2, सो इसको लिखेंगे 85 n2। अब जब यहाँ पे ये 75 है तो ये 75 100 के साथ भी जाएगा एंड 75 n2 के साथ भी जाएगा। सो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई होगा विद 100 तो ये हो जाएगा 7500 प्लस 75 into n2 तो 75 n2 आ जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू 6900 प्लस 85 दैट इज 85 n2। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई कंडीशन देगा तो एक मेरे को क्या करना है कि मुझे सारे नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करना है एंड जो वेरिएबल है उसको दूसरे साइड शिफ्ट करना है। सो ये हो जाएगा 7500 माइनस 6900 इज इक्वल टू 85 n2 माइनस 75 n2 आएगा। सो ये हो जाएगा 600 एंड ये हो जाएगा 10 n2। सो 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या आएगा n2। सो यहाँ पे 60 इज इक्वल टू क्या आएगा n2, therefore n2 इज इक्वल टू क्या आएगा 60 एंड लास्ट में लिखेंगे therefore। अभी कंडीशन में बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, सो यहाँ पे इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज क्या आ जाएगा 60। So ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। So now we start with the next question, that is question number 18। So अब 18 सब रीड करते हैं। 18 सब में क्या सेट ऑफ डेटा दिया गया है। So 18 सब में क्या वैल्यूज दिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा if the average marks in a certain test of boys and girls in the class are 85 and 80 respectively, and if average marks for the entire class are 83.75, find the percentage of boys in the class। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, इफ द एवरेज मार्क्स इन द सर्टेन टेस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर 85 एंड 80। जब ये वैल्यू दिया है मतलब मेरे को एक चीज समझ में आता है, बॉयज के मार्क्स के एवरेज को हम कंसीडर करेंगे x1 बार एंड गर्ल्स के मार्क्स को कंसीडर करेंगे एज व्हाट x2 बार। सो x1 बार एंड x2 बार का वैल्यू दिया गया है एंड ये वैल्यू है 85 एंड 80, ये वैल्यूज दिया गया है। आगे उन्होंने बोला है इफ एवरेज मार्क्स फॉर द एंटायर क्लास मतलब क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का कंसीडर करके, दैट इज दोनों ग्रुप को कंसीडर करना पड़ेगा एज बॉयज एंड व्हाट गर्ल्स। पूरे ग्रुप का एवरेज मार्क्स दिया गया है एज, सो इसलिए उसको लिखेंगे एक्सी बार एंड वो वैल्यू दिया गया है 83.75।
सो यहाँ पे x1 बार आ गया, x2 बार आ गया, xc बार आ गया। अब आगे उन लोग ने क्या पूछा है, तो उन लोग पूछ रहे फाइंड परसेंटेज ऑफ व्हाट बॉयज इन द क्लास। बट अभी हमारे पास खाली इतना ही डेटा है, तो ये जो गिवन डेटा है उस हिसाब से हम पहले एटलीस्ट जो फॉर्मूला है वो कंडीशन एप्लीकेबल लिख देते, दैट इज xc बार का फॉर्मूला आएगा एंड ये xc बार को हम लिखेंगे एज व्हाट n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 इतने वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे क्या सेट ऑफ वैल्यूज है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे xc बार है जो है 83.75 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो n1 की जगह पे n1 ही जाएगा, x1 बार मालूम है तो उसकी जगह पे 85 जाएगा, प्लस n2 वापस मालूम नहीं है बट x2 बार मालूम है तो x2 बार की जगह पे 80 जाएगा, अपॉन यहाँ पे n1 मालूम नहीं है, यहाँ पे n2 मालूम नहीं है तो n1 प्लस n2 ही लिखा जाएगा। वापिस ये टर्म जो अपॉन में है वो दूसरी साइड जाएगा तो शिफ्ट करेंगे तो v से वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो 83.75 इंटू क्या आएगा n1 प्लस n2, ये वैल्यू जो है इज इक्वल टू 85 n1 प्लस 80 n2 इतना आ जाएगा। अब ये वाला टर्म 83.75 इंटू n1 प्लस n2 तो मतलब 83.75 जो है वो n1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड n2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 83.75 n1 आएगा प्लस 83.75 n2 आएगा इज इक्वल टू 85 n1 आएगा प्लस 80 n2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंस मुझे परसेंटेज ऑफ बॉयज चाहिए तो मेरे को क्या करना है, बॉयज वाले पार्ट को एक साथ इकट्ठा करना है एंड गर्ल्स वाले पार्ट को एक साथ इकट्ठा करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 83.75 n2 माइनस 80 n2 इज इक्वल टू आएगा 85 n1 माइनस 83.75 n1। सो अब अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू का आंसर आ जाएगा 3.75 n2 is equal to 1.25 n1। सो अब अगर हम वैल्यूज देखते हैं, हमें चाहिए ना परसेंटेज ऑफ बॉयज। सिंस परसेंटेज ऑफ बॉयज चाहिए मतलब बॉयज वाला पार्ट, तो बॉयज वाला पार्ट क्या है तो मैं बोलूंगा इट इज n1, गर्ल्स वाला पार्ट क्या है तो इट इज n2, तो मुझे n1 अपॉन n2 का रेशियो चाहिए। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 3.75 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू क्या आएगा n1 अपॉन n2। सो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते तो n1 बाई n2, सो इसका रेशियो इज 3:1। सो n1 अपॉन n2 का रेशियो अगर 3:1 है एंड अगर मुझे जानना है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने हैं तो मैं ऐसा देखूंगा परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो सिंस मुझे परसेंटेज ऑफ बॉयज कैलकुलेट करना है तो मुझे यह पता होना चाहिए कि बॉयज का हिस्सा कितना है। तो मैं अगर देखता हूं तो बॉयज का हिस्सा कितना है तो इट इज 3, क्योंकि मैं बोल रहा हूं n1 अपॉन n3 3:1। 3 अपॉन 1 का मतलब होता है 3:1 एंड जब मैं बोलता हूं 3:1, सो जब ये 3:1 को 3 अपॉन 1 इज सेम एज 3:1, तो बॉयज का हिस्सा 3 पार्ट्स है, अपॉन मुझे लिखना होगा टोटल हिस्सा दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स का मिलके। सो टोटल हिस्सा बॉयज एंड गर्ल्स का मिलके बॉयज इज 3 पार्ट, गर्ल्स इज 1 पार्ट, तो 3 + 1 टोटल हो जाएगा 4 पार्ट्स। सो 3 पार्ट्स ऑफ बॉयज आउट ऑफ टोटल ऑफ 4 पार्ट्स इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। सो 3 अपॉन 4 इनटू 100, इसको कैलकुलेट किया ये हो जाएगा 4 1s एंड 4 व्हाट 25 तो 3 into 25 तो ये हो जाएगा 75। सो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर। उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द परसेंटेज ऑफ व्हाट बॉयज इन द क्लास। सो परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट में आएगा देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू क्या आएगा 75%, ये वैल्यू आ जाएगा। सो अगर हम देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया, क्वेश्चन नंबर 18 किया, सो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस किए। सो अब ये 2 टाइप के जो क्वेश्चंस किए दोनों भी अलग टाइप का क्वेश्चन था। एक में पूछा था कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है और एक में पूछा था परसेंटेज ऑफ बॉयज। सो ये थोड़ा सा अलग था जो हमने प्रीवियस जो इसके पहले जो 16 क्वेश्चन किया 15 क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग था एंड यहाँ पे ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ सम्स था। खाली कंडीशन आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगा एंड अगर वो हम बराबर करते हैं तो हमको इजीली ये टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब हम इसको नोट डाउन करेंगे।
Now we start with the next question. That is question number 19. And question number 19 हम read करते हैं. So ये 19th question में क्या दिया गया है ये देखते हैं हम. So average monthly salary of employees of a firm is 5,200 दिया है. The average salary of gents and ladies from the firm are 4,800 and 6,000. Find the ratio of gents and ladies in the firm. वापिस एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं. द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म इज 5,200. द एवरेज सैलरीज ऑफ जेंट्स एंड लेडीज फ्रॉम द फर्म आर 4,800 and 6,000. फाइंड द रेशियो ऑफ जेंट्स एंड लेडीज इन द फर्म. सो अब अगर इतना डेटा जो दिया है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें इन द मैथमेटिकल फॉर्म तो अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यूज क्या आएगा. एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, अरे एम्प्लॉइज बोला मतलब कहने से उसमें जेंट्स एंड लेडीज दोनों भी कंसीडर होंगे तो इसका मतलब होता है एवरेज बोला है तो कंबाइंड एवरेज दिया है एंड ये कंबाइंड एवरेज का वैल्यू दिया है 5,200. ये वैल्यू दिया गया है. आगे रीड करता हूं. द एवरेज सैलरीज ऑफ जेंट्स एंड लेडीज फ्रॉम द फर्म्स आर. अरे तो एवरेज बोला वापिस से एवरेज जेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाई 1 एंड लेडीज को रिप्रेजेंट करते हैं बाई 2 एंड सिंस ये एवरेज है इसलिए x1 बार हो जाएगा एंड x2 बार हो जाएगा एंड इसका वैल्यू दिया है 4,800 एंड 6,000. ये वैल्यूज दिया गया है. अब आगे उन्होंने क्या बोला है. फाइंड द रेशियो ऑफ जेंट्स एंड लेडीज इन द फर्म. सो यहाँ पे रेशियो अभी वापिस से इतना ही डेटा दिया है. ना ही मेरे पास n1 का वैल्यू है ना ही मेरे पास n2 का वैल्यू है बट उन्होंने हमें क्या वैल्यू पूछा है तो पूछा है रेशियो ऑफ जेंट्स एंड लेडीज इन द फर्म. एंड जब जेंट्स एंड लेडीज का रेशियो चाहिए इसका मतलब n1 अपॉन n2 का वैल्यू चाहिए. तो अगर हम देखते हैं इतना कंडीशन दिया है तो एक ही चीज समझ में आता है दैट इज xc बार दिख रहा है इसका मतलब xc बार का फॉर्मूला यूज होगा एंड xc बार का जो फॉर्मूला है वो है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस क्या आएगा n2. तो इसमें से अब जो सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास है उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सबसे पहले ये वैल्यू है 5,200 इज इक्वल टू n1 इंटू x1 बार. तो n1 का वैल्यू तो नहीं है, x2 बार का वैल्यू है 4,800 प्लस n2 का वैल्यू वापिस हमारे पास नहीं है बट x2 बार का वैल्यू है विच इज 6,000 वो डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ये दोनों वैल्यूज नहीं है बट अगेन ये अपॉन में है. ये वैल्यूज जब शिफ्ट हो गए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. तो ये हो जाएगा 5,200 इंटू n1 प्लस क्या आएगा n2 इज इक्वल टू. अब हम देखते हैं यहाँ पे n1 इंटू 4,800 है तो जब n1 इंटू 4,800 करेंगे तो 4,800 n1 हो जाएगा प्लस ये n2 इंटू 6,000 है तो n2 इंटू 6,000 किया तो ये 6,000 क्या हो जाएगा n2 एंड अपॉन में जो टर्म था वो तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. सो अब ये 5,200 n1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड 5,200 n2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5,200 n1 प्लस 5,200 n2 इज इक्वल टू 4,800 n1 प्लस 6,000 n2. अब हम क्या करेंगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों साइड पे n1 एंड n2 के वैल्यूज है तो मुझे चाहिए n1 अपॉन n2 का रेशियो. तो मुझे क्या वैल्यूज चाहिए, मुझे सारे n1 के टर्म्स एक साइड चाहिए और सारे n2 के टर्म्स एक साइड चाहिए. जब मैं बोलता हूं n1 के टर्म्स एक साइड तो अभी मैं देखूंगा n1 का बड़ा वैल्यू किधर है. यहाँ पे है 5,200 यहाँ पे है 4,800 तो मैं शिफ्ट करूंगा ये 4,800 को लेफ्ट साइड पे बिकॉज यहाँ पे बड़ा वैल्यू है. सो यहाँ पे 5,200 n1 5,200 n1 minus 4,800 n1 is equal to अब क्या आएगा 6,000 n2 माइनस क्या आएगा 5,200 n2 का वैल्यू. सो 5,200 n1 माइनस 4,800 n1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 400 n1 विच इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 800 n2. अब मुझे क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड द रेशियो ऑफ जेंट्स एंड व्हाट लेडीज. तो जेंट्स को हम लोग ने कंसीडर किया एज व्हाट 1 एंड लेडीज को कंसीडर किया एज व्हाट 2. तो इसका मतलब है मुझे चाहिए n1 अपॉन n2 का वैल्यू क्योंकि उन लोगों ने पूछा है रेशियो का वैल्यू. सो n1 अपॉन n2 इसका मतलब n1 इज टू n2 होता है. सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 800 अपॉन क्या हो जाएगा 400. सो दिस बिकम्स व्हाट n1 अपॉन n2 एंड n1 बाय n2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 upon 1. So the ratio of this is 2:1. So finally last में हम यहाँ पे कंडीशन लिखे गया is what? Therefore the ratio of gents
and ladies in a firm is 2:1. ये वैल्यू है 2:1 इज द रेशियो. सो 2:1 बोले या 2/1 बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है. तो 2:1 लिखा या फिर 2/1 लिखा, दोनों में से कुछ भी लिखा तो चलेगा यहाँ पे. तो ये सम खत्म होते ही हमारा जो मीन का टाइप था, ये मीन का जो टाइप था वो हमने एंड किया है. तो उसके पहले, वो एंड करने से पहले हमारा ये सम लिखना बाकी है, तो हम ये नोट डाउन करें. एंड ये नोट डाउन करते ही हमारा ये सेक्शन जो था that was based on combined mean, ये पार्ट खत्म हो रहा है. एंड अब तक लास्ट प्रीवियस कुछ सेक्शंस में हमने खाली क्वेश्चंस किए थे which were based on what mean. And in the next section we'll be starting with the new type, that is median के related जो questions है वो start करेंगे in the next section.